Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 12 जनवरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, राइट। बीमार मत होना है। एग्जाम के टाइम से पहले जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाया करो, हेल्दी रहा करो, एक्सरसाइज करा करो, डेली आधा सा 1 घंटा ज़रूर। मैं नहीं कहता कि आप वेट्स उठाइए, मैं चाहता हूं कि आपका स्टेमिना बना रहे। आप जाइए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, राइट, जॉगिंग कीजिए, इससे आपका स्टेमिना बना रहेगा, राइट। ब्लो आपके सर में जो फ्लो है ब्लड का वो बढ़ेगा, उससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, राइट। तो एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए, चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच मिनिस्ट्री कंडक्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन छिलका लेक अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। देखो, सबसे पहले मिनिस्ट्री देखते हैं तो आपको चीजें समझ आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा यहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया छिलका लेक में अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। इससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, और छिलका लेक हम जानते हैं ये क्या है, ये एक रामसर साइट है। तो इसको कंजर्व करने के लिए, इसके आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए, और हम जानते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म का भी प्रभाव रहता है। काफ़ी टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं बल्कि ग्लोबली यहाँ पर लोग आते हैं इस साइट को विजिट करने के लिए, छिलका लेक को विजिट करने के लिए, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में। तो यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी कि कैसे आप अपने एरिया को साफ रख सकते हैं, एंड जो टूरिस्ट आ रहे हैं हम उनको कैसे कैटर कर सकते हैं। ठीक है। रामसर साइट हम जानते हैं, ये रामसर ब्यूरो की अगर बात करें तो ये कहां पर हेडक्वार्टर रहेगा इसका, ग्लैंड कहां है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ 2024 में कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, 75। चलिए, तो आप यहां देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन छिलका लेक। इसी के साथ साथ बताओ अभी किस कंट्री ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी फॉर फूड पार्क्स इंडिया में, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देन इंडिया का पहला फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, इंडिया का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म प्रमोट करने की बात की गई किस स्टेट के द्वारा, गुजरात के द्वारा, और गुजरात में भी कहां पर, द्वारका में। ठीक। फिर इसी के साथ बताओ इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। आई रिपीट, इंडिया का पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, ये कहां पर रहेगा, ये दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने नोटिफाई किया रिवाइज्ड प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को अंडर विच शेड्यूल टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिवाइज किया है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को अंडर शेड्यूल एम। अब देखो ये क्यों रिवाइज किए गए, पहले आपको यह समझना पड़ेगा इजी सेंस में। हमने काफी बार पढ़ा कि जो फार्माक्यूटिकल जो मेडिकल सेक्टर है इसमें हम काफी सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, राइट, ये हम इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इंपोर्ट हम जानते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी क्या चाहती है कि सब कुछ हम इंडिया में ही लाएं, सब कुछ हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें एंड उसको फिर हम एक्सपोर्ट पे मेजर जो फोकस रहता है ना कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें। तो सिमिलरली अगर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी, ये अच्छी होंगी, राइट, हम ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड के तरीके से लाएंगे। और ग्लोबल स्टैंडर्ड के तरीके से लाने का रीजन क्या है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे तो हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शेड्यूल एम के अंडर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स है ना उनको यहां पर अमेंड किया है, राइट, रिवाइज किया है। तो मार्क करके चलेंगे अंडर शेड्यूल एम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर इसके अलावा आपसे मैं एक दो चीज और पूछूं, जैसे अभी बताओ 200 ग्रीन बसेस किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? असम के द्वारा लॉन्च की गई ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए गुवाहाटी को, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर रहेगा? वृंदावन में। कहां पर रहेगा? वृंदावन में। ये कहां पर है? यूपी में, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ वो पहली यूटी कौन सी बनी जिन्होंने भी रिसेंटली पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया? तो पहली यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं डीजीसीए। डीजीसीए ने अभी रिसेंटली न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम रूल्स को लाए हैं फॉर फ्लाइट क्रू एंड रिड्यूस द पायलट फटीग एंड एनहेंस फ्लाइट सेफ्टी। देखो पहले जो पायलट्स थे, जो क्रू मेंबर्स थे, फ्लाइट क्रू के जो मेंबर्स होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह एंड स्टूवर्ड्स जो होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पहले टायर्डिंग काम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनको फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इनके बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसको यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो जो मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड है ना फ्लाइट क्रूज के लिए, वो 48 आवर्स कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था? 36 आवर्स, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स लैंडिंग ड्यूरिंग अ पीरियड टू कर दी गई हैं, जो कि पहले 6 थी ड्यूरिंग नाइट ऑपरेशंस। फिर इसी के साथ साथ और भी काफी सारे ऐसे रूल्स लाए गए हैं जहां पर हम देखेंगे कि जो पायलट्स हैं एंड फ्लाइट क्रू मेंबर्स हैं, इनको जो थकावट हो जाती है, राइट, क्योंकि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑनगोइंग लगातार जा रहे हैं इधर से उधर, तो उसको कहीं ना कहीं रेस्ट देने के लिए, इनको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, इनकी बॉडी पे ज्यादा टोल ना आए, इसीलिए ये फ्लाइट सेफ्टी को भी एनहेंस करने के लिए किया गया। क्योंकि अगर देखो पायलट ही अगर पूरा फोकस नहीं रहेगा ड्यूरिंग द फ्लाइट टाइम तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये नई स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं। डीजीसीए की अगर मैं बात करूं तो यहां पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? विक्रम देव दत्त। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड सेल। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ ताकि जो इंडिजीनियस कंटेंट है ना शिप्स के लिए, जो भी हम इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी शिप्स बनाते हैं, जैसे इंडियन नेवल शिप्स बना रहे हैं, राइट, या फिर कोई फेरी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्टील लगेगा, उसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, हम चाहते हैं कि वो इंडिजीनियस हो, हम चाहते हैं कि वो इंडिया से ही सोर्स किया गया हो, हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाओ, रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहते। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ यहाँ पे एक एमओयू साइन किया, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा ना आपकी, जो भी नेवल शिप्स में, फेरीज में, सबमरीन्स में जो भी लगेगा, वो हम इंडिया के ही थ्रू प्रोवाइड करेंगे और सेल वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। एज पर दिस एमओयू सेल सप्लाई करेगा इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील टू इंडियन शिपयार्ड्स फॉर आईसीजी शिप। अब इंडियन शिपयार्ड्स कौन से हो गए? जैसे मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जीआरएससी हो गया, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड हो गया, इनमें सेल यहां पे प्रोवाइड कराएगा, ठीक। नेक्स्ट है किस सिटी को नॉमिनेट किया गया फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन? वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन के लिए अभी रिसेंटली किन सिटी को इंडिया से नॉमिनेट किया गया? किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नॉमिनेट किया गया। कौन सी 3 सिटीज हैं? इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। इंदौर और भोपाल तो ये कहां से आ जाती हैं आपकी?
इंदौर और भोपाल है मध्य प्रदेश से, उदयपुर आ जाती है राजस्थान से। तो ये वो 3 सिटीज हैं इंडिया की जिन्होंने रामसर कंजर्वेशन में काफी काम किया। जो उनकी रामसर साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग रूल्स बनाए हैं, राइट, उनको कंजर्व किया बेसिकली, करेक्ट। तो इन तीनों सिटीज को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। हमने देखा इंदौर, भोपाल, उदयपुर, इनको नॉमिनेट किया गया। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अभी एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को प्रोक्योर कर रही है, बाय कर रही है, और उसके लिए अप्रूवल मिल गया है सीसीआई से, वो है पंजाब गवर्नमेंट। देन ग्लोबल ड्रोन हब, ग्लोबल ड्रोन हब बन रहा है। कौन सा बन रहा है ग्लोबल ड्रोन हब, कौन सी स्टेट बन रही है, महाराष्ट्र ग्लोबल ड्रोन हब बन रहा है। ठीक, मार्क करके चलेंगे। फिर एक्सेल और मित्तल, इन्होंने पार्टनर किया किस आईआईटी के साथ टू ऑपरेट एज अ हाइपरलूप फैसिलिटी, या फिर एक हाइपरलूप फैसिलिटी बनाने के लिए एक्सेलर मित्तल ने किसके साथ टाइप किया, आईआईटी मद्रास के साथ यहां टाइप किया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 हेल्ड। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज जिसका नाम है सी ड्रैगन, ये एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट कहां पर हुई, पहले लोकेशन पर देखते हैं। यह है गुआम एयरफोर्स स्टेशन, गुआम, जो कहां पर है, यूएसए में, राइट। 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। अगली चीज आपसे पूछूं तो मैं बताओ कितनी कंट्रीज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। तो 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, राइट, एंड यूएसए, जहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। फिर इसी में याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, तो P-8I ये एयरक्राफ्ट है जिसने पार्टिसिपेट किया इन दिस सी ड्रैगन 24 इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं P-8I एयरक्राफ्ट जिसने पार्टिसिपेट किया इन द 4th एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, कहां पर हुई, सी ड्रैगन, गुआम, यूएसए में। नेक्स्ट, बैंकिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो अभी ज़ेरोदा फंड हाउस के द्वारा एक इंडिया का पहला ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नेम है ज़ेरोदा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ईटीएफ, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। अगर ज़ेरोदा की बात करें, ज़ेरोदा फंड हाउस की, तो यहां पे कौन रहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है विशाल जैन, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में रहेगा। 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अगर पूछा जाए वाइब्रेंट गुजरात समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट में कौन चीफ गेस्ट रहेंगे, वो है चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर। रिपब्लिक डे पर कौन यहां पे चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया के, इनैमुअल मैक्रॉन, ठीक। फिर यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे, अभी रिसेंटली के स्मार्ट टेक सॉल्यूशन, के स्मार्ट टेक सॉल्यूशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केरला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने पार्टनर किया डिजिवृद्धि के साथ टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विस टू डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स को वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, उनके लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिजिवृद्धि के द्वारा, राइट। तो किस बैंक ने इनके साथ पार्टनर किया, वो है कर्नाटका बैंक ने। डेयरी फार्मर्स को ग्रो करने के लिए इनको जो भी लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैश इन हैंड चाहिए होता है, करेक्ट, अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए इजीली, इसके लिए कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया है डिजिवृद्धि के साथ। अगर कर्नाटका बैंक लिमिटेड की मैं बात करूं, एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, एसएच शर्मा, हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका, एस्टैब्लिश किया गया 1924 में। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये टैगलाइन रहेगी। डिजिवृद्धि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो फाउंडर एंड एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, राघवन वेंकटेशन, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका, और 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। फिर इसी के अलावा कुछ और करंट अफेयर्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताओ स्टार्टअप एक्सपो कठुआ में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। फिर अभी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ, किस स्टेट में हुआ था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, गुजरात में हुआ था। और हम जानते हैं अयोध्या को लॉन्च किया जाएगा, अयोध्या हमारे राम मंदिर को लॉन्च किया जाएगा 22 जनवरी को, तो उससे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी लॉन्च किया गया था,
ठीक है। फिर अयोध्या के एयरपोर्ट को रीनेम क्या किया जाएगा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरकास्ट किया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू स्लो डाउन फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर टू जस्ट 2.4%। अगर ये बात करें तो ये है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जनवरी 2024 की। इसमें इन्होंने बताया कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी, 2.4% रहेगी 2024 में। अगर मैं 2023, 2022 और 2021 की बात करूं तो 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 2.6%। 2022 में कितनी थी, 3%। और 2021 की बात करें तो 6.2% से ग्लोबल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही थी। इसी के साथ साथ इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में है। इंडिया की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की, जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है 2024 के लिए, वो कितनी रहेगी, 6.4% प्रोजेक्ट की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट अजय बंगा। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1944 में। और कितने मेंबर रहेंगे इसके, 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ सिक्योरिटी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। फोर्थ सिक्योरिटी जनरल बिम्स्टेक के और थर्ड सिक्योरिटी जनरल बिम्स्टेक के कौन रहेंगे, दोनों देखते हैं। तो थर्ड कौन है, टेंजिंग लेकपाल। टेंजिंग लेकपाल को अब कौन सक्सीड करेंगे, वो है इंदिरा मानी पांडे। इंदिरा मानी पांडे जी ये अब फोर्थ सिक्योरिटी जनरल बन गए हैं इंडिया के। एक और चीज, फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 3 साल के लिए ये इस पोजीशन पे रहेंगे, राइट। तो आई रिपीट, इंदिरा मानी पांडे फोर्थ सिक्योरिटी जनरल बन गए हैं बिम्स्टेक के एंड पहले इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन। एंड टेंजिंग लेकपाल ये थर्ड सिक्योरिटी जनरल थे जिनको ये रिप्लेस करेंगे। अगर इनकी बात करें इंदिरा मानी पांडे की, ये एक आईएफएस ऑफिसर हैं 1990 बैच के। देन ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ इंडिया टू द यूएन। इसी के साथ साथ ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं ओमान के फ्रॉम 2015 टू 2018, इंडियन एम्बेसडर टू ओमान। देन ये डेप्टी एम्बेसडर टू फ्रांस भी रह चुके हैं 2013 से 2015 के बीच। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में आ जाते हैं आपका कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और अब फोर्थ सिक्योरिटी जनरल कौन है यहाँ के, इंदिरा मानी पांडे। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है एलआईसी ये एक्वायर करेंगे हाउ मच परसेंट स्टेक इन आरएमबीएस एंटिटी। आरएमबीएस क्या है, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में, राइट। तो एनएचबी बैक्ड नेशनल हाउसिंग बैंक बेस्ड आरएमबीएस फैसिलिटी में एलआईसी कितना परसेंट स्टेक एक्वायर करेगी, 10%, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ हाउ मच परसेंट स्टेक इन सिग्नेट बाय आईएमसीडी इंडिया। तो कितना परसेंट स्टेक, 30% स्टेक एक्विजिशन की बात की गई इन सिग्नेट बाय आईएमसीडी इंडिया। आईएमसीडी इंडिया होल्ड करते हैं 70% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन सिग्नेट, वेयर एज द रिमेनिंग 30% ये प्रोमोटर्स के पास है एंड ये कॉल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई जो कि है मोदी एनर्जाइजिंग द ग्रीन फ्यूचर, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट, जो एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फ्यूचर को प्रमोट करने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक लॉन्च की गई भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इनके द्वारा ये मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इस बुक को पब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया, पब्लिश किया जाएगा पेंटागन प्रेस इन एसोसिएशन विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन। ये बुक एडिटेड की गई है आर.के. पचनंदा जी के द्वारा, राइट, विवेक डेब्रॉय, अनिर्बन गांगुली एंड उत्तम कुमार सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करेंगे जैसा इंपॉर्टेंट डेज नाम है। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11 से 17 जनवरी के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी एंड रोड सेफ्टी के साथ साथ जब हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उससे जो डेथ होती है उनको भी प्रिजर्व करने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो रोड सेफ्टी पे ध्यान देने की बात की गई, ऑब्जर्व किया जाता है 11 से 17 जनवरी के बीच। ये तो है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। अगर मैं बात करूं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की, तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा पहली बार 2024 में, करेक्ट। 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को। और एक और चीज आ जाता है यूएन
रोड यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ये ग्लोबल यूएन रोड या फिर यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये मई के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। 15 से लेके 21 मई तक हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? नेशनल रोड सेफ्टी वीक की बात करें तो पहली बार 1989 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज पर। अभी रिसेंटली पंजाब वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है ना, उनकी लोकेशन में, उनके एरिया में, उनको मैप पर लॉन्च किया है, राइट। उसको मैप पर अलर्ट के तौर पे उन्होंने डाल दिया है। तो पंजाब वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने मैप किया ऑल 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है मैपल्स मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि डेवलप की गई है सीई इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड, मैप माई इंडिया के अंडर। इनके द्वारा यहाँ पर मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है, जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, उनको मैप पर यहां पर लाया गया है, उसको मैप पर यहां पे पिन पॉइंट करा गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कंडक्ट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम इन छिलका लेक, जो कि उड़ीसा में है, जो कि एक रामसर साइट है, अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफाई किया रिवाइज्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को, अंडर विच शेड्यूल? अंडर शेड्यूल एम टू कंट्रोल क्वालिटी। देन डीजीसीए ने रिवाइज किया न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम रूल्स को फ्लाइट क्रू के लिए एंड पायलट को फटीग हटाने के लिए। देन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड सेल ने साइन किया एक एमओयू टू इंक्रीज द इंडिजीनियस कंटेंट शिप। इंदौर, भोपाल, उदयपुर, इनको नॉमिनेट किया गया फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए। इंडियन नेवी का P8I इसने पार्टिसिपेट किया इन द 4th एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन, जो कि गुआम यूएसए में हुई। जेरोदा फंड हाउस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF स्कीम नेम्ड जेरोदा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF। कर्नाटका बैंक एंड डिजिवृद्धि इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विस टू डेयरी फार्मर्स। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड बैंक, इन्होंने फोरकास्ट किया 2024 ग्लोबल ग्रोथ टू स्लो डाउन फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर टू 2.4% और इंडिया ग्रो करेगा 6.4% 2024 में। इंदिरा मानी पांडे इनको अपॉइंट किया गया 4th सिक्योरिटी जनरल ऑफ बिम्स्टेक और ये पहले इंडियन बन गए हैं टू होल्ड द पोजीशन, 3 साल तक इस पोजीशन पे रहेंगे। LIC ने पिक किया 10% स्टेक इन NHB प्रमोटेड RMBS एंटिटी। देन CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 30% स्टेक इन सिग्नेट बाय IMCD। भूपेंद्र यादव के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी में ऑब्जर्व किया गया एंड पंजाब वो पहली स्टेट बन गई जिसने मैप किया ऑल एक्सीडेंट प्रोन एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन देयर मैप, दैट इज मैपल्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा सेशन। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट मैं ला सकूं। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने रिवीजन पार्ट पर, यह आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट MCQ, राइट। अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर्स भी होंगे यहाँ पे, कुछ MCQs भी हैं, कुछ आपकी टॉपिक्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो जैसे सांस, ये कैंपेन था मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड बेसिकली ये जो कैंपेन था ना, न्यूमोनिया को के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर आता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा? पाट मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट रिपब्लिक डे पर किसको अपॉइंट किया गया है? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक, फिर इसके अलावा अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं 3rd टाइम के लिए? अब्दे फतेह एल सीसी, राइट। फिर ED ऑफ ICICI बैंक कौन अपॉइंट किए गए हैं? संदीप बत्रा। कुछ और देखें तो वो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट कौन है जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया USA 2023? वो है रिजुल मैनी। ठीक है, फिर वो कौन सी फिल्म है जिसको KIFF फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। नेक्स्ट, किसको अभी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नितिन मोहन लाल को, राइट। देन किसको अभी फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी? वो रहेगा NTPC कांति। ठीक,
फिर लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक, फिर इसके अलावा जरा बताओ विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? हरियाणा के द्वारा पहली बार जीती गई है। देन MRF फॉर्मूला 2000 क्राउन किन्होंने जीता? वो है संदीप कुमार ने। मोस्ट एक्सपेंसिव IPL प्लेयर कौन रहा है इस ऑक्शन के दौरान, IPL ऑक्शन के दौरान? मिशेल स्टार्क। ठीक है, और सब जूनियर स्नूकर टाइटल किन्होंने जीत लिया? नताशा चेतन ने। वेयर वॉज द 18th सेशन ऑफ द यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ICH हेल्ड? ये ICH क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ICH होता क्या है? इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, राइट, और टेंजिबल वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल कल्चर क्या हो गया? जैसे आपके फेस्टिवल्स हो गए, राइट, कोई आपकी प्रथा हो गई, कोई आपका वे ऑफ डूइंग समथिंग हो गया, राइट, वो तो हो गया आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या आ जाता है? जैसे टेम्पल की बिल्डिंग्स हो गई, राइट, वो आपका टेंजिबल, क्योंकि आप उसको फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूछा गया। अभी 18वां सेशन हुआ ऑफ द यूनेस्कोस इंटरनेशनल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये कहां पर हुआ? तो ये बोत्सवाना में हुआ। इंपॉर्टेंट है, 5 से लेके 8 दिसंबर के बीच में हुआ। ये कहां पर हुआ? बोत्सवाना में हुआ। और इस सेशन के दौरान 55 नई कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंडिया में और ग्लोबली 55 नई कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और इंडिया के गरबा डांस को भी यहां पर ऐड किया गया इन दिस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का है वो भी इस लिस्ट में आता है। ठीक है, मार्क करेंगे। चाइना एंड डैश कंट्री, इन्होंने मिलकर अभी 2 कॉपरेशन डॉक्यूमेंट साइन किए ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टू बूस्ट दी स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली मोटा देखा जाए तो चाइना एंड इजिप्ट के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हम काम करें, चाहे उससे रिलेटेड स्पेसक्राफ्ट बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या कुछ भी। तो इजिप्ट एंड चाइना के बीच में, चाइना की होती है CNSA एंड इजिप्ट की होती है EGSA, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रोगेटेड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है आर्टिकल 370, राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी राइट दे दिया टू एलिमिनेट दिस आर्टिकल 370, करेक्ट। इसको 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 5 अगस्त 2019। एंड ये जो आर्टिकल 370 है ये ग्रांट करता है जम्मू एंड कश्मीर को टू मेक देयर ओन लॉज इन द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो वो मैटर हैं वो उनमें डील कर सकते हैं, अपने लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट इन दीज कैटेगरीज। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड एडवांस क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल? तो ये क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स किसके हैं? ईरान के रहेंगे, राइट। इनकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर तक की। इसी के साथ साथ एक थर्मल मिसाइल का भी नाम याद रखेंगे, थर्मल मिसाइल, क्या नाम रहेगा इसका? माजिद, राइट, माजिद नाम की थर्मल मिसाइल रहेगी। 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। इसको भी ईरान के द्वारा ही डेवलप किया गया है, राइट। एंड करार कॉम्बैट ड्रोन्स ये भी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड 588.68 करोड़ रुपीज कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी? आई रिपीट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया 588.68 करोड़ रुपीज कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर द डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी? वो है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी। एंड ये जो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव रहेगा किस ऑर्गेनाइजेशन का? इंडियन कोस्ट गार्ड का। India, along with which organization, signed a $100 million loan agreement to improve urban services and tourism facilities in the state of Tripura? तो त्रिपुरा स्टेट में हमें अर्बन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना है, बेटर वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, राइट। उसके लिए हम देखेंगे 42 किलोमीटर की नई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, स्ट्रॉम ड्रेन्स को साफ किया जाएगा, नहीं है तो इस्टेब्लिश किया जाएगा, 4 नए ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे लाए जाएंगे। एंड फिर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी,
करेक्ट, जिससे क्या होगा, टूरिस्ट ज़्यादा आए यहाँ पर। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो कि इस टूरिज्म सेक्टर से इंक्लूडेड हैं, जो इस टूरिज्म सेक्टर में हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली याद रखेंगे कि इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये $100 मिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किया, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे ये $100 मिलियन प्रोवाइड कराएगा त्रिपुरा में, राइट, ताकि ये सारी फैसिलिटीज हम ला सकें। अभी एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जो कि मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये रिपोर्ट रिलीज की गई या फिर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई वी बॉक्स के द्वारा, जो कि एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है। एंड इन्होंने ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट रिलीज करी, जो कि 11th एडिशन था इस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का। और इसमें इन्होंने बताया कि केरला वो स्टेट है जो कि बेस्ट या फिर मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बाय बोथ मेल एंड फीमेल, राइट। फिर इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्टेट अगर देखें तो जो ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ है वो हमें गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलता है, फिर पुणे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन केरला एंड देन तेलंगाना। केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, पिनरई विजयन। गवर्नर कौन रहेंगे, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री इज द डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कुकिंग ऑयल इन द वर्ल्ड, नहीं इन इंडिया देखते हैं, ठीक है। विच कंट्री इज द डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया, तो सबसे पहले याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में कुकिंग ऑयल का जो सबसे बड़ा डोमिनेंट सप्लायर है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय यूएसए एंड रशिया ऑन थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो इंडिया का कुकिंग कोल इंपोर्ट्स 5 ईयर हाई पे रहा एंड यहां पर हमें कब से सबसे ज्यादा कहां से देखने को मिला सप्लाई, वो देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, फॉलोड बाय यूएसए एंड रशिया ऑन द सेकेंड पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया अलोंग विद विच कंट्री अग्री टू एक्सटेंड क्रूशियल आईबीपी रूट। आईबीपी की फुल फॉर्म पता लगती तो आप आंसर बता दोगे। तो आईबीपी क्या होता है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल। तो पूछा जा रहा है इंडिया अलोंग विद विच कंट्री अग्री टू एक्सटेंड देयर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, तो वो बांग्लादेश रहेगा। और इससे होगा क्या, एक तो ट्रेड फ्लरिश होगा, एक दूसरी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा वो बढ़ावा आएगा, राइट। आवाजाही होगी तो ट्रेड बढ़ेगा, आपका इकोनॉमी ग्रो करेगी, करेक्ट। बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और एक और चीज यहां पे डिक्लेयर करी गई कि सफरडिगी, ये एक पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, इसे पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया है, पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया, किसको, सफरडिगी को। ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। अब ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल होता है जब कोई भी अपना क्रूज शिप या फिर कार्गो शिप अपने कंटेनर्स को, राइट, अपने कार्गो को आके वहां पे ऑफलोड कर सके, उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। और सफरडिगी पोर्ट को अभी पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया, जो कि ये वेस्ट बंगाल में रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू सीबीआरई इंडियाज रिपोर्ट, विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड हाईएस्ट शेयर ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। मतलब एमएसएमई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का किस स्टेट का रहता है, वो डाटा यहाँ पे सीबीआरई इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। तो कौन सी स्टेट रहेगी, वो है हमारी महाराष्ट्र। कितना परसेंट शेयर रहेगा महाराष्ट्र का, 17% शेयर रहता है। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका तमिलनाडु विद 10% शेयर, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आपका यूपी विद जस्ट 9% शेयर ऑफ एमएसएमई टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ये जो रिपोर्ट है CREDAI, राइट, इसकी एक नेशनल समिट हुई थी, नेशनल न्यू इंडिया समिट, न्यू दिल्ली में हुई थी, सॉरी आई करेक्ट, कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी, वाराणसी यूपी में हुई थी। और ये 5वां एडिशन था इस CREDAI समिट का, जो कि वाराणसी यूपी में हुई, 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में हुई, करेक्ट। और यहाँ पे सीबीआरई इंडिया रिसर्च इस न्यू इंडिया समिट का पार्टनर था, नॉलेज पार्टनर, करेक्ट। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये डाटा रिलीज किया गया कि महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। विच डिजीज हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज WHO के द्वारा ये रिकॉग्नाइज की जाती हैं। और अभी रिसेंटली नोमा नाम की एक डिजीज को
ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, राइट। और ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की लिस्ट WHO के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। इस लिस्ट में अब 21 डिजीज आती हैं, याद रखेंगे। ये जो इनिशिएटिव था इसको डिक्लेयर करने का एज द ट्रॉपिकल डिजीज, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के द्वारा। इन्होंने अपने ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जनवरी 2023 में यहाँ पे एक प्रॉपर रिक्वेस्ट सबमिट की थी इन WHO, ताकि इस डिजीज को एक डिक्लेयर किया जा सके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। फिर इसी के साथ याद रखेंगे ये एक डेड टिश्यू डिजीज है, ये आपके माउथ और फेस पे जनरली आती है। एंड जो मालन्यूरिश्ड यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो से 6 साल के बच्चे, उन पे यहाँ पे ये इफेक्ट होता देखने को मिलता है। एंड जनरली बोले तो जो पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट एरियाज होते हैं, जहां पर पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, उन एरियाज में हमें ये डिजीज का इफेक्ट देखने को मिलता है। नोमा नाम की डिजीज है, राइट। और इसको WHO ने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया, रिकॉग्नाइज किया एज द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन डील विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी किस के साथ एक डील साइन करी, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनके साथ यहाँ पर एक लोन डील साइन करी है ताकि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर इसको डेवलप किया जा सके। RRTS क्या होता है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, करेक्ट। तो RRTS को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर एक लोन अग्रीमेंट साइन किया। ये जो लोन अग्रीमेंट था, ये हम बोले तो $250 मिलियन का लोन रहेगा, या फिर ये इक्विवेलेंट है आपका 37 बिलियन जापानीज येन के, ठीक है। इससे क्या होगा? RRTS कॉरिडोर डेवलप होगा तो वीमेन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वीमेन फिर ट्रेवल कर सकेंगी इजीली, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ट्रेड बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, राइट। तो इवन नॉट जस्ट दिस, जो लैंड एरिया होगा RRTS के आसपास का, उसमें भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जहां जहां पर ये स्टेशंस डेवलप होंगे वहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड वहां का जो एरिया है उसमें भी हमें काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिर होमवर्क सेक्शन। पहला, रेड एंड चटनी विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। दूसरा, विच कंट्री इज द होस्ट एंड चेयर ऑफ द 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन 2024। तीसरा, अकॉर्डिंग टू प्रेस्टिजियस अवार्ड्स बाय स्काईट्रैक्स इन 2023, कौन से एयरपोर्ट को क्राउन किया गया एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। चौथा, व्हाट इज द नेम ऑफ द असॉल्ट राइफल जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है DRDO के द्वारा। पांचवा, चांदूबी फेस्टिवल, यह भी रिसेंटली न्यूज में था, किस इंडियन स्टेट में हमने ऑब्जर्व किया चांदूबी फेस्टिवल। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड, जहां पे आपके करंट अफेयर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में और डिटेल्ड मैनर में हम कवर कराते हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.